Namaskar, myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan, and again welcome in my new series of videos related to business law. And today in this video I am going to unfold a new act. It's called the Negotiable Instrument Act 1881. In this video I am going to discuss the basics of Negotiable Instrument Act 1881. Okay, let's start. Negotiable Instrument Act 1881 came into the force at 1st March 1881. It extends whole India except Jammu and Kashmir. And this Negotiable Instrument Act 1881 does not affect the any like Indian Currency Act or any local rules and regulation related to like hundis or any other instrument. It does not affect it. Okay. Now, first of all, for understanding the Negotiable Instrument Act 1881, first of all we need to know what is negotiable instrument. Let's start. Negotiable. Negotiable means transferable by delivery. Negotiable means transferable by delivery. Negotiable means transferable by delivery, and instrument means written document. Written document. Written document which is transferable by delivery is called negotiable instrument. बताइए. It's a word meaning only. The negotiable means transferable by delivery. Written document. It means a written document which is transferable by delivery is called negotiable instrument. Now, what is going to transfer? What is going to transfer and what is going to deliver? The negotiable instrument itself? No, something else. It creates a right, अधिकार, कि एक प्रकार का rights create करता है, and rights is going to transfer in the form of negotiable instrument. Right means what? Right means suppose हमने 10,000 रुपए का चेक लिखा, 10,000 रुपए का चेक लिखा और सिग्नेचर किया. मैंने वो चेक लिखा श्रेया श्रीवास्तव के नाम से. श्रेया श्रीवास्तव के नाम से 10,000 का हमने चेक लिखा. तो ये 10,000 का जो राइट है, 10,000 का जो राइट था, जो हमारा था, वो उस राइट को हमने श्रेया श्रीवास्तव को ट्रांसफर कर दिया. बात समझ में आ रही है? तो अभी जब हमने साइन कर दिया उस डेट पे ये राइट ट्रांसफर हो गया श्रेया श्रीवास्तव को. तो इट मींस ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी मींस व्हाट इज गोइंग टू ट्रांसफर? द राइट्स इज गोइंग टू ट्रांसफर. Rights of money. This is very important things. Negotiable instruments only deals with money. In other words, we can say that negotiable instrument is a substitute of money, substitute of currency. मतलब पैसे के बदले में जो कागजात लिया जाए वो negotiable instrument है. बताइए. It means negotiable instrument or written document which is transferable by delivery. It creates a right and transfer to anyone else, and it is also substitute of money. पैसे के बदले, एक बार फिर से, पैसे के बदले में जिन कागजातों का लेन देन किया जाता है जिसकी उसको हम negotiable instrument कहते हैं. ठीक है. Now, as per section 13 subsection 1, negotiable instrument means promissory notes, bill of exchange or check payable either to order or to bearer. There are three major negotiable instruments. The Negotiable Instrument Act 1891 deal with, there are three major instruments. The first one is promissory notes, second one is bill of exchange, and third one is a चेक. अब यहां पे एक बात और लिखी है, पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस लाइन एक्चुअली कि व्हाट डज
इसका मतलब क्या है कि either to order or to bearer. It means, अच्छा एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज 100 रुपीज नोट, नई वाली नोट है ये, और आप ध्यान देंगे कि इस नोट पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे, यहां पे देखिए, आपके पास भी नोट होगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं, ये यहां पे देखना है, देख रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं. इट मीन्स दिस कैश 100 rupees note is a bearer instrument, it is not to order, it is to bearer. Bearer means holder is the owner of the negotiable instrument. ये 100 का नोट मेरे पास है तो इसका मालिक मैं हो गया. ये 100 का नोट अगर आपके पास चला जाए तो ये इस 100 के नोट के मालिक आप हो जाएंगे. It means in the case the holder is the owner, in the case of bearer instrument holder is the owner. लेकिन दूसरा केस, the second case is related to order. To order what? मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल दिया था कि श्रेया को मैंने 10,000 श्रेया और 10,000 अमाउंट का चेक दिया, तो this instrument, this amount of money of sum of 10,000 rupees is only for Shreya Srivastava, not for anyone else. मतलब it is to order, मतलब ये अगर ये चेक गिर जाए, अकाउंट पे ही चेक है और हमने चेक पे सारा नाम मेंशन किया है, सिग्नेचर किया है, तो बाकी लोगों के लिए कागज के टुकड़े के समान है, क्योंकि ये चेक उसी के पास जाएगा जिसके नाम से ये चेक है. दिस इज द मीन्स ऑफ टू ऑर्डर. तो इट मीन्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी इधर पेएबल, लिखा हुआ है पेएबल ईदर टू ऑर्डर आर टू बियरर. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ टू ऑर्डर आर टू बियरर. चलिए कुछ हम लोग इसके इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज पेएबल टू ऑर्डर आर बियरर. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन. बियरर होल्डर इज द ओनर, कैश वाला 100 रुपए वाला एग्जांपल दिया. ऑर्डर किसी की स्पेसिफिक नाम से है, तो टू ऑर्डर, एंड इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल. एनी काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मे बी प्रॉमिसरी नोट्स, मे बी बिल ऑफ एक्सचेंज, मे बी चेक, ये फ्रीली ट्रांसफर होता है. एंड इट इज ऑलवेज अनकंडीशनल. आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि ये 5,000 रुपए तभी मिलेगा जब हमारी सैलरी 7 तारीख को आएगी, ऐसा तो नहीं है. अगर इस प्रकार का आप प्रॉमिस लिखते हैं प्रॉमिसरी नोट्स पे या बिल ऑफ एक्सचेंज पे, तो इट इज नॉट कंसिडर एज ए वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इट मस्ट बी अनकंडीशनल एंड सिग्नेचर ऑफ द पार्टी मस्ट बी देयर, एज पर डेट मस्ट बी देयर, एंड राइट टू क्लेम. जिस पार्टी के नाम से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, द पर्सन हैव राइट टू क्लेम, एंड इट इज ऑलवेज रिटन डॉक्यूमेंट. इट इज ऑलवेज रिटन डॉक्यूमेंट. ओरली नहीं बोलेंगे कि मैं आपको 5,000 रुपए का देने का वचन देता हूं. तो ये एग्रीमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट मींस रिटन डॉक्यूमेंट, तो इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म. एंड प्रिजम्पशन एज टू होल्डर. एवरी होल्डर कंसीडर एज ए होल्डर इन ड्यू कोर्स. तो इसका मतलब कि किसी के पास भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, एज होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ थर्ड पार्टी, जिसको चेक मिला हुआ है या इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है. पिछला क्या ट्रांजैक्शन हुआ है उससे उनके टाइटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. वो राइट जो उनको मिला है इंस्ट्रूमेंट में वो उनको मिलेगा, उनके टाइटल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. इसलिए एवरी होल्डर कंसीडर एज ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, एंड प्रिजम्पशन इज व्हाट? टाइटल ऑफ होल्डर फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट. हमेशा टाइटल ऑफ द होल्डर ऑलवेज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट. और जब भी यहां ट्रांजैक्शन होगा, मैंने बताया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी. जब भी यहां ट्रांसफर किया जाएगा, यहां कोई ट्रांजैक्शन होगा, वो हमेशा पैसे का होगा, हमेशा मनी का होगा. दैट्स ऑल अबाउट बेसिक
concept of Negotiable Instrument Act 1881 and meaning of negotiable instrument and essential characteristics of negotiable instrument. Thank you so much. धन्यवाद.